تاریخ کے اوراق میں بے شمار بادشاہوں، جنگجوؤں اور فاتحین کا ذکر ملتا ہے، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین نہیں بلکہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ ایک ایسا نام جس کی ہیبت سے دشمنوں کی صفیں کانپ اٹھتی تھیں اور جس کے عدل و انصاف کی گواہی خود اس کے بدترین دشمن بھی دیتے تھے۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اسلام کے اس عظیم فرزند کی جس نے بکھری ہوئی مسلم امہ کو یکجا کیا اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزادی دلائی۔ آج کے اس 20 منٹ کے سفر میں ہم اس عظیم مرد مجاہد کی زندگی، اس کی جد و جہد اور حطین کے اس تاریخی مارکے کا بغور جائزہ لیں گے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ظہور سے قبل عالم اسلام انتہائی تاریک اور مشکل دور سے گزر رہا تھا۔ مسلمان آپس میں منقسم تھے اور ان کی طاقت ٹکڑوں میں بٹ چکی تھی۔ بغداد کی خلافت کمزور ہو چکی تھی، شام، مصر اور عراق مختلف حکمرانوں کے زیر اثر تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اس انتشار کا بھرپور فائدہ صلیبیوں نے اٹھایا۔ پہلی صلیبی جنگ کے نتیجے میں 1099 عیسوی میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور صلیبیوں نے وہاں مسلمانوں کا وہ خون بہایا کہ گلیاں سرخ ہو گئیں۔ تقریباً 9 دہائیوں تک مسجد اقصی پر صلیب لہراتی رہی۔ مسلمانوں کے دل خون کے آنسو روتے تھے۔ انہیں انتظار تھا ایک ایسے رہبر کا جو اس مقدس سرزمین کو واپس لائے۔ اس مایوسی کے دور میں 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تقرید کے ایک قلعے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام یوسف رکھا گیا، جو بعد میں صلاح الدین کے لقب سے مشہور ہوا۔ وہ کرد نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک بہادر اور قابل احترام سردار تھے۔ صلاح الدین کی پرورش دمشق کے علمی اور روحانی ماحول میں ہوئی۔ بچپن ہی سے انہیں جنگی تربیت کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث اور اسلامی فقہ کی تعلیم دی گئی۔ وہ ایک خاموش طبع، سوچنے والے اور انتہائی عبادت گزار نوجوان تھے۔ ان کے اندر قیادت کے جراثیم موجود تھے، لیکن ان کی اصل جنگی اور سیاسی تربیت ان کے بہادر چچا اسد الدین شیر کو اور اس وقت کے عظیم حکمران نور الدین زنگی کی سرپرستی میں ہوئی۔ نور الدین زنگی ایک انتہائی متقی اور بہادر حکمران تھے جن کا ایک ہی خواب تھا: مسلمانوں کو متحد کرنا اور بیت المقدس کو صلیبیوں کے ناپاک قدموں سے آزاد کرانا۔ نور الدین زنگی نے حلب میں ایک خوبصورت لکڑی کا ممبر تیار کروایا تھا اور انہیں یقین تھا کہ ایک دن یہ ممبر فتح کے بعد مسجد اقصی میں رکھا جائے گا۔ صلاح الدین نے اس خواب کو اپنے سینے میں اتار لیا۔ وہ نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوئے اور اپنی ذہانت، بہادری اور جنگی حکمت عملی کی بدولت جلد ہی ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ نور الدین زنگی نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ نوجوان کوئی عام سپاہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وہ تلوار ہے جو کفر کے اندھیروں کو چیر کر رکھ دے گی۔ صلاح الدین کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ اس وقت آیا جب ان کے چچا اسد الدین شیر کوہ کو مصر کی طرف ایک فوجی مہم پر بھیجا گیا اور صلاح الدین کو ان کے ساتھ جانا پڑا۔ مصر پر اس وقت فاطمی خلافت کی حکومت تھی جو اندرونی سازشوں کا شکار تھی اور صلیبیوں کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ کر رہی تھی تاکہ شام کے مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے۔ صلاح الدین دراصل اس مہم پر جانے سے کتراتے تھے، لیکن قسمت انہیں اس سرزمین کی طرف کھینچ رہی تھی جہاں وہ تاریخ کے سب سے طاقتور سلطان بننے والے تھے۔ کئی جنگوں اور محاصروں کے بعد شیر کوہ نے مصر پر کنٹرول حاصل کر لیا، مگر کچھ ہی عرصے بعد ان کا اچانک انتقال ہو گیا اور مصری قیادت کا خلا پیدا ہو گیا۔ شیر کوہ کی وفات کے بعد صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر مقرر کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر محض 31 سال تھی۔ دشمنوں کا خیال تھا کہ یہ نوجوان اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گا، مگر صلاح الدین نے اپنی بے پناہ حکمت عملی اور عدل سے نہ صرف مصر کی عوام کے دل جیت لیے بلکہ تمام باغیوں اور سازشیوں کا سختی سے خاتمہ کر دیا۔ انہوں نے مصر کی کمزور اور کرپٹ فاطمی خلافت کا باضابطہ طور پر خاتمہ کیا اور مصر کو دوبارہ عباسی خلافت اور نور الدین زنگی کی سلطنت کے ماتحت کر دیا۔ یہ مسلم تاریخ کا ایک عظیم ترین کارنامہ تھا جس نے مصر کی بے پناہ دولت اور طاقت کو شام کی فوجی قوت کے ساتھ جوڑ دیا اور صلیبیوں کے گرد گھیرا تنگ ہونے لگا۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، جس سے شام اور عراق میں دوبارہ خانہ جنگی اور انتشار کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان یہ تقسیم برقرار رہی تو بیت المقدس کبھی آزاد نہیں ہو سکے گا۔ چنانچہ وہ فوج لے کر دمشق پہنچے اور بغیر خون بہائے شہر پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اگلے 12 سالوں تک سلطان صلاح الدین نے انتہائی صبر اور بصیرت کے ساتھ شام،
इराक और यमन के बिखरे हुए मुस्लिम इलाकों को एक परचम तले जमा किया। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र और शाम के बिला शिरकत गैर सुल्तान बन चुके थे। उनकी सल्तनत ने सलीबी रियासतों को एक हिलाल की शक्ल में 3 तरफ से घेर लिया था। अब वक्त मऊद करीब था। दूसरी जानिब सलीबियों में एक इंतहाई जालिम और सफ़ाक जंगजू मौजूद था, जिसका नाम रेजिनॉल्ड ऑफ शटलियन था। वो करक के मजबूत कले का हुक्मरान था। सलाहुद्दीन और सलीबियों के दरमियान एक अमन का मुआहदा तय पाया था ताकि तिजारती काफिले महफूज रहें, लेकिन रेजिनॉल्ड के सीने में मुसलमानों के खिलाफ इस कदर जहर भरा था कि उसने ये मुआहदा तोड़ दिया। उसने हाजियों और ताजरों के एक बड़े काफिले पर बेदर्दी से हमला किया, उनका माल लूटा, मर्दों को कत्ल किया और औरतों को कैद कर लिया। जब कैदियों ने सलाहुद्दीन और अमन मुआहदे का वास्ता दिया तो उस जालिम ने तौहीन आमेज लहजे में कहा, जाओ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाओ कि वो आकर तुम्हें बचाएं। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को पहुंची तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अल्लाह की कसम खाई कि वो इस गुस्ताख रेजिनॉल्ड को अपने हाथों से जहन्नम वासिल करेंगे। सलाहुद्दीन ने जिहाद का ऐलान कर दिया और पूरी मुस्लिम दुनिया से मुजाहिदीन को तलब किया। 30,000 से जायद का एक अजीम लश्कर इकट्ठा हुआ और सलीबियों के खिलाफ मार्च शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यरूशलेम के बादशाह गाय ऑफ लुजिनान ने भी सलीबियों की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज जमा कर ली, जिसमें मशहूर नाइट्स टेम्पलर भी शामिल थे। जुलाई 1187, गर्मी अपने उरूज पर थी। सलाहुद्दीन ने एक इंतहाई जबरदस्त जंगी चाल चली। उन्होंने तबरिया के किले पर हमला करके सलीबियों को एक बंजर और पानी से महरूम मैदान में आने पर मजबूर कर दिया। ये मैदान करून हित्तीन कहलाता था। सलीबी फौज भारी जरह बख्तर पहने हुए शदीद गर्मी और प्यास से निढाल हो रही थी। सलाहुद्दीन की फौज ने पानी के वाहिद चश्मे पर पहले ही कब्जा कर रखा था और रात के वक्त उन्होंने कैंप के गिर्द खुश्क झाड़ियों में आग लगा दी। गर्मी, प्यास, धुएं और खौफ ने सलीबियों की कमर तोड़कर रख दी। जब अगली सुबह का सूरज तुलू हुआ तो उनके सामने मौत और सलाहुद्दीन की नाकाबिले शिकस्त फौज खड़ी थी। तकबीर के बुलंद नारों के साथ मुसलमानों ने थके हुए और प्यासे सलीबी लश्कर पर एक फैसला कुन और तबाहकुन हमला कर दिया। हित्तीन का मैदान लाशों से अट गया। सलीबियों की सबसे बड़ी और नाकाबिले तस्खीर समझी जाने वाली फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। ये मुस्लिम तारीख की अजीम तरीन फतूहात में से एक थी। इस जंग में सलीबियों के गुरूर को हमेशा के लिए खाक में मिला दिया गया और यरूशलेम का दिफा बिल्कुल ख़त्म हो गया। जंग के इख्तिताम पर यरूशलेम के बादशाह गाय और उस सफ़ाक जालिम रेजिनॉल्ड समेत कई बड़े सलीबी सरदारों को जिंदा गिरफ्तार करके सलाहुद्दीन के खैमे में लाया गया। खैमे का मंजर इंतहाई ड्रामाई था। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातिहाना मगर पुरवकार अंदाज में तख्त पर जलवा आफरोज थे। उन्होंने प्यासे बादशाह गाय को पीने के लिए ठंडा पानी पेश किया। बादशाह ने पानी पिया और प्याला रेजिनॉल्ड की तरफ बढ़ा दिया। जब उस जालिम ने पानी पीना चाहा तो सलाहुद्दीन ने गरजदार आवाज में रोका, मैंने इसे पानी नहीं पिलाया, इसलिए मैं इसकी जान बख्शने का पाबंद नहीं। अरबी रिवायात में अगर कैदी को हुक्मरान की तरफ से पानी पिलाया जाए तो उसकी जान बख्शी जाती है। सुल्तान ने याद दिलाया कि रेजिनॉल्ड के जराइम और गुस्ताखियों की कोई माफी नहीं है। सलाहुद्दीन ने अपनी तलवार निकाली और फरमाया, तूने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और बेगुनाहों का खून बहाया। आज तेरा गुरूर टूटेगा। और उसी लम्हे उन्होंने उसका सर कलम कर दिया। बादशाह गाय ये मंजर देखकर कांप उठा कि अब उसकी बारी है, लेकिन सलाहुद्दीन ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। एक बादशाह दूसरे बादशाह को कत्ल नहीं करता। इस शख्स ने अपनी हदें पार की थीं। हित्तीन की फतह के बाद सलाहुद्दीन के लिए फ़लस्तीन के तमाम बड़े किले और शहर एक एक करके गिरने लगे। अक्का, नाबलस, याफा और अस्कलान बगैर किसी बड़ी मुज़ाहिमत के फतह हो गए। अब सलाहुद्दीन का रुख उस मंजिल की तरफ था जिसके लिए ये सारी जिद्दोजहद की गई थी, यानी मुस्लिमों का क़िबला अव्वल, अंबिया की सरजमीन यरूशलेम। सितंबर 1187 में सलाहुद्दीन की फ़ौज ने यरूशलेम का मुहासरा कर लिया। शहर के अंदर इंतहाई खौफ व हरास फैला हुआ था। वो डरते थे कि सलाहुद्दीन भी शहर में दाखिल होकर खून की नदियां बहाएगा और सलीबियों के 100 साल पुराने जुल्म का भयानक बदला लेगा। यरूशलेम का दिफा एक ईसाई जंगजू बैलियन ऑफ इब्लन कर रहा था। उसने शहर की दीवारों को मजबूत किया और लड़ने के काबिल हर शख्स को हथियार थमा दिए।
चंद दिनों तक जबरदस्त मुहासरा और झड़पें जारी रहीं। मुसलमानों के मंजनीकों ने शहर की दीवारों पर ताबड़तोड़ हमले किए। जब बैलियन को यकीन हो गया कि शहर बचाना नामुमकिन है, तो उसने सलाहुद्दीन को पैगाम भेजा कि अगर उन्हें अमान न दी गई तो वो शहर के तमाम मुक़द्दसात को आग लगा देंगे। सलाहुद्दीन, जो खून रेजी से बचना चाहते थे और शहर के तक़द्दुस का बेहद एहतराम करते थे, उन्होंने जंग बंदी और मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। बैलियन और सलाहुद्दीन के दरमियान खैमे में एक तारीखी मुलाकात हुई, और दूसरी तरफ सलाहुद्दीन थे, जो मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार थे। सलाहुद्दीन ने एक इंतहाई फराख दिल मुआहदा किया। उन्होंने तमाम ईसाइयों को जान और माल की अमान दी। 2 अक्टूबर 1187 जुमे का दिन, 88 साल के इंतजार के बाद यरूशलेम के दरवाजे मुसलमानों के लिए खुल गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी फातेह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए, लेकिन उनका सर गुरूर से बुलंद नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर शुक्र से झुका हुआ था। कोई लूटमार नहीं हुई, किसी का खून नहीं बहाया गया। मस्जिद अक्सा को गलाजतों से पाक किया गया, उसे अर्क़े गुलाब से धोया गया, और नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा वो लकड़ी का मिंबर आखिरकार अपने मकाम पर रख दिया गया। ईसाई जो फिदिया नहीं दे सकते थे, सलाहुद्दीन और उनके भाई आदिल ने अपनी जेब से उनका फिदिया अदा करके उन्हें आज़ाद कर दिया। ये वो अखलाक था जिसने यूरोप को भी दंग कर दिया। सलाहुद्दीन ने ये साबित कर दिया कि इस्लाम अमन, अदल और इंसानियत का मजहब है। आज तक मगरबी तारीखदान इस बात पर हैरान हैं कि ऐसा अजीमुशान फातेह इतना रहमदिल कैसे हो सकता था। यरूशलेम की फतह की खबर जब यूरोप पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। पोप सदमे से इंतकाल कर गया और पूरी मसीही दुनिया ने यरूशलेम वापस लेने के लिए तीसरी सलेगी जंग का ऐलान कर दिया। इस बार यूरोप के सबसे ताकतवर बादशाह मैदान में उतरे। उनमें सबसे नुमाया इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड शेरदिल था, जो एक इंतहाई खतरनाक और जंगजू कमांडर था। रिचर्ड एक बहुत बड़ी फौज, जदीद हथियारों और बेपनाह गुस्से के साथ अक्का के साहिल पर उतरा। उसका वाहिद मकसद सलाहुद्दीन को शिकस्त देकर यरूशलेम पर दोबारा सलीब लहराना था। अक्का का मुहासरा इंतहाई तवील और खूनी साबित हुआ। बिलाखिर अक्का के किले को हथियार डालने पड़े और रिचर्ड ने 3000 से जायद निहत्थे मुसलमान कैदियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया। रिचर्ड शेरदिल और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान टकराव तारीख की सबसे दिलचस्प जंगी दास्तानों में से एक है। दोनों एक दूसरे की जंगी सलाहियतों के कायल हो चुके थे। अरसूफ के मैदान में दोनों अजीम लश्करों का आमना सामना हुआ। रिचर्ड ने एक इंतहाई मजबूत दिफाई दीवार बनाई थी, जिसे तोड़ना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो रहा था। सलाहुद्दीन की फौज ने ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन रिचर्ड की फौज साबित कदम रही। ये जंग किसी फरीक की मुकम्मल फतह पर ख़त्म नहीं हुई, लेकिन रिचर्ड यरूशलेम तक पहुंचने में नाकाम रहा। इस दौरान कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जो तारीख का अनोखा बाब है। एक जंग में रिचर्ड का घोड़ा मारा गया तो सलाहुद्दीन ने उसे ये कहकर 2 उम्दा घोड़े भिजवाए कि बादशाह पैदल नहीं लड़ते। जब रिचर्ड शेरदिल शदीद बीमार पड़ गया तो सलाहुद्दीन ने दुश्मनी के बावजूद उसके इलाज के लिए अपने बेहतरीन शाही तबीब भेजे और बर्फ और ताज़ा फल भिजवाए। उनके इस अजीमुशान किरदार ने रिचर्ड शेरदिल का दिल मोह लिया। रिचर्ड को एहसास हो गया कि सलाहुद्दीन को जंग के मैदान में शिकस्त देकर यरूशलेम छीनना नामुमकिन है। बिलाखिर सितंबर 1192 में याफा के मकाम पर दोनों बादशाहों के दरमियान एक तारीखी अमन मुआहदा तय पाया। ये तीसरी सलेबी जंग का बाकायदा इख्तिताम था। मुआहदे के तहत तय पाया कि यरूशलेम और फ़लस्तीन का बेशतर हिस्सा मुसलमानों के कंट्रोल में रहेगा, जबकि ईसाई ज़ायरीन को बिना किसी हथियार और टैक्स के यरूशलेम आने की मुकम्मल आज़ादी होगी। रिचर्ड शेरदिल यूरोप वापस चला गया और सुल्तान सलाहुद्दीन दमिश्क वापस आ गए। मुसलसल जंगों, मुहासरों और सफ़र ने सुल्तान की सेहत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया था। 4 मार्च 1193 को महज 55 साल की उम्र में ये अजीम बादशाह, मुजाहिद और वली बुखार में मुब्तला होकर अपने खालिक हकीकी से जा मिला। पूरी मुस्लिम दुनिया में सफ़े मातम बिछ गई। जब सुल्तान के खजानची ने उनका ज़ाती खजाना खोला तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इस अजीम सल्तनत के बादशाह के पास कफन दफन के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने अपनी सारी दौलत गरीबों, यतीमों और जिहाद में खर्च कर दी थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी आज मिट्टी के नीचे सो रहे हैं, मगर उनका अदल, उनकी शुजाअत और यरूशलेम पर लहराता उनका परचम आज भी जिंदा है।